Okay, then Avinash, you're going for campus recruitment for Tata Consultancy Engineering, right? Yes, sir. Let's Yes, sir. start with a brief introduction. Sir, first of all, good afternoon, sir. My name is Avinash Kumar Gupta, belongs from Kushinagar, Uttar Pradesh district, and I have completed my BTech in Civil Engineering from Rajki Engineering College, Manpuri, Uttar Pradesh, and right now I am doing my masters in structural engineering from the NIT Warangal, and I did my internship in design a pre-engineering buildings at design a pre-engineering building steel structures at Kirby Building Kirby Building Systems, Hyderabad. And right now, my project MTech thesis work is going on the durability behavior of long CFST column and CFFT columns. हम्म, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए है अपना? Yes, sir. So is this the project you were talking about? Durability behavior of long CFFT and CFST column. ड्यूरेबिलिटी CFS से क्या समझते हैं? durability means column will be analysis under the different environmental conditions, just हाउ like डू the मेजर द normal cooling ड्यूरेबिलिटी? conditions. Dur- First, my project is based on the software, only software, and durability. We take the some parameters for the CDP parameters. In my case, for the normal curing, in case of environmental, in case of the SD curing, in case of base curing. This parameter these parameters I have got from the literature reviews and papers journals. अविनाश, when did you do your BTech? Sir, I have done my BTech in 2020, And when did you join your MTech? 2022. तो आपने 2 साल क्या किए बीच में? Sir, actually, really, in first time when I was passed in 2020, there was a lockdown. That's why I did not go to anywhere and stuck at my home. And after that I doing the preparation for the gate and crack the gate exams and came here. सो व्हाट डिड यू डू एट होम? वो तो वंडरफुल टाइम था घर में अपने आप को अपस्किल करने का. Actually, sir, when I stuck at home, I did not. I did, at that time, I don't have the any materials or any things which I will learn. But I learn from the some resources from online, just like the YouTube's and at that time I was learning the one software, Estate Pro softwares. I was learning about how to make a bending. How in Sir, can I speak in the? हाँ, गुड. सर, उस टाइम पे हमने एक एवेकस के मतलब एस्टेड प्रो और ऑटो कैड के बारे में सुना था। तो एस्टेड प्रो में क्या किया हमने कि जो हमने बीटेक्स में पढ़े थे, बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना या फिर और सब चीजें बनाना, तो हमने उसको एस्टेड प्रो में एनालिसिस किया कि क्या वो सेम आ रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, कैसे मतलब उसमें एनालिसिस कर सकते हैं ऐसा। ये कैसे आपने कहाँ पे पढ़ा? कहाँ अपने आप को सीखा आपने? सर, ये हमने ऑनलाइन ऐसे ही मतलब कोर्सेरा एक वेबसाइट थी, उस पे हमने कुछ रिव्यू देके कुछ पढ़े, तो उसके बाद से हमने खुद सेल्फ ट्राई किया कि कैसे करना है, तो फिर कुछ यूट्यूब वीडियो फॉलो किए। आप एमटेक किस लिए कर रहे हैं? सर, एमटेक to enhance my knowledge as a structural engineer and contribute to growth in the company. तो अभी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग जो हमारा कंपनी है, उसका वेबसाइट आपने देखा है क्या? यस सर, यस सर। कुछ लगा आपको एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर किस डोमेन में आपको जाना है? यस सर, in Tata Consultancy is offering the infrastructures. In infrastructure, as a structural engineers, you have to design a structures to withstand the pressures and stresses buildings which is applied by the human or environment.
So I have to, as a structural engineer, I have to design buildings and नहीं, कुछ बताइए हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बताओ जो आपको अच्छे लगे हों। yes sir. First projects recently is completed a world largest green ammonia projects. And one also is to in 2020 is 2018 is completed 182 meters tall Statue of Unity. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी And के बारे में कुछ बताओ। mm, क्यों बोलते हैं sir, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? किसकी स्टैच्यू है ये? statue सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे सरदार पटेल? सर जैसे सर हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी इनके बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मतलब इस तरीके के इंसान थे कि वो जिस चीज को करने की ठान लेते थे फिर वो करते थे। मतलब जैसे कि उन्हें एक फोड़ा हो गया था तो उन्होंने मतलब कि लोग मतलब उन्हें सलाह दिया गया कि अगर वो फोड़े पे अगर रॉड मतलब हीटेड रॉड को हम रख दें तो वो शायद सही हो जाएगा। तो उन्होंने उस लोग डरते थे कि शायद मतलब बहुत पीड़ा होगी ऐसा मतलब कि लेकिन वो उन्होंने ठान लिया कि ऐसे करना है तो फिर उन्होंने ऐसा किया। बट उनको आयरन मैन बोलते थे, लौह पुरुष। यस यस सर यस सर तो उनकी बिकॉज जो ऑफ दिस मूर्ति बनी है वो कौन से मटेरियल की बनी है? सर एग्जैक्टली आई डोंट नो फ्रॉम कितनी विच बड़ी है मटेरियल। मूर्ति? 182 meters लॉन्ग। 182 मीटर। यस मैम यस सर। अच्छा, कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी उस स्ट्रक्चर के अंदर? स्ट्रक्चर्स के अंदर सर just like a compressive stresses, tensile stresses, and we can say the compressive in biaxial, uniaxial also. इतना भारी स्टैच्यू बनाने से पहले हमें ग्राउंड में क्या चीज को इंस्पेक्ट करना पड़ता है? अच्छा, First, we क्यों have ज्वाइन to करना create चाहते the हैं आप टीसीई? sir in T. mm, Actually, sir, ओके अविनाश, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। अविनाश देखो, एक तो आपका फ्लो में प्रॉब्लम है। फ्लो विद पैस ऑफ yes sir. टाइम बढ़ेगा। हिंदी में बोलना है तो बोल दो, फ्लो फ्लो में पूछो मत। जब बोलना स्टार्ट करोगे ना Okay, sir. हिंदी में बीच में, तो हिंदी में आंसर कर दो। अगर कहीं लग जाए कि भाई मैं हिंदी में अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो बोल देना हिंदी में। इंग्लिश से Okay, बोलना sir. स्टार्ट करना, इंग्लिश में भी ठीक बोल रहे हो, कोई ट्रबल नहीं है, बस कहीं रुक रहे हो। जैसे मैं गैप पूछ रहा हूँ तो घबरा जा रहे हो, नर्वसनेस आ रही है चेहरे पे, वो नहीं आनी चाहिए। Okay, कि सर sir. मेरा गैप 2020 से 22 के बीच में था, और वो ऐसा पीरियड था जिसमें लॉकडाउन था। तो मैंने सोचा कि बेस्ट टाइम है सर, मैं अपना प्रिपरेशन करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ घर में। दैट विल बी सेफ एंड ऑल्सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग, और उसकी वजह से सर मैंने गेट वगैरह का प्रिपरेशन किया एंड आई कुड क्लियर गेट। मास्टर्स में इसलिए करना चाहता था कि मैं स्ट्रक्चर्स में thesis करना चाहता था। और ये जरूर देख लेना टीसीई में स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोफाइल हो आपके लिए। तो Yes, मैं sir. Yes. स्ट्रक्चर्स का करना चाहता था मास्टर्स, और फिर मैंने गेट निकाला और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि मैंने स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन किया। अभी कौन से कॉलेज में हैं आप अविनाश? NIT Warangal. हाँ, तो एनआईटी वारंगल जो है एक मेन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो ऐसा करो, बाकी जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको नोट करते चले जाओ। क्वेश्चन ऐसे इम्प्रॉम्प्टू आते हैं, जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर दी, पूछेगा भाई किसकी है, वल्लभ भाई Yes. पटेल की, पहले होम मिनिस्टर है इंडिया के वो, लौ पुरुष बोलते हैं Yes, sir. उनको। तो उनके बारे में मेन पॉइंट जो मुंह से निकल गया ना, वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो। क्वेश्चन Okay, दिमाग में sir. रख के नहीं बैठा होता वो क्वेश्चन। फिर क्या भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर नेट पे डालोगे एज अ स्ट्रक्चर, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, तो कुछ इशू चल रहे हैं वहां। Oh, वो पढ़ो एज अ सिविल इंजीनियर क्या है okay. उसके। और कौन कौन सी Yes, sir. स्टैच्यूज हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बता दो, न्यूयॉर्क में जो है उसके बारे में बता दो। तो ऐसे तुम्हें तुम्हें आइडिया होना चाहिए उस चीज का, राइट?